Good morning, everybody. I'm Dr. and I'm taking this live class on Facebook. So kindly show your presence, those who have come to attend the class. Good morning, everybody. Yes, let us begin the class. Yesterday, I asked you that we would be discussing certain of uh, Middle English and Old English, Anglo-Saxon English. So at the end of the session, we talked about Cursor Mundi, that work in English, altogether 1000 words in English. Apart from that, let us talk about that PDF I sent, to the students who are in classes, and those who are new should listen to us what we are talking about. Uh, Next important poem of Middle English is The Owl and the Nightingale. So in the coming NET exam, they can ask you this question, The Owl and the Nightingale. It is a 12th or say 13th century Middle English poem. And as the title suggests, that there are two characters in this, the owl and the nightingale. And then they are talking, and so it's a kind of, a debate kind of poem. So genre which was famous in the Middle English, and it's an allegory. And next important poem, because they don't ask us, details of the Old English or the Middle English period literature. They mostly ask us, like, either they ask us the publication date sometimes, but as you all know that Middle English and Anglo-Saxon works were not exactly published. They were published after starting of the printing press. So they can only ask you, like, in which category, if you see the nature of the questions they have asked so far. So these kind of questions they can ask you. Okay, so after Cursor Mundi, which is considered to be the most important one, and the paid student, they know it, that yesterday when I sent you the PDF, I gave, I think, every detail in that PDF, so that if you go through that PDF once. Okay, and second poem I talked about is The Owl and the Nightingale. As I told you that it's an allegory and it is a kind of poem. And the next one in this category is Ormulum or Ormulum. There is a spelling difference, Ormulum. This is again, a 12th century work, and it has 19,000 lines. So this still exists, and they can ask a question like, what is actually there was a monk, monk. Monk means, the people who live a kind of, a celibacy there in the monasteries. So his name was Om. Okay, and this is again a very important poem, from examination point of view. Why we study poems actually? Because these poems somewhere they talk about the development of the linguistic development, in the poems in the English language. So as you all know that Middle English had influence of Old English, that is Anglo-Saxon English, as well as it had an effect of the Norman conquest. In some of the other lectures, I informed you regarding the French influence on English language. So this Owl and the Nightingale and Ormulum, they are, important poems from that point of view. Next important work from examination point of view, like when I talk about, say, 10 work or say 8 works, one there in the question, but rest of the questions will be there in the options. So from the options point of view also, these questions become, or these poems become important. So the next poem is conscience. CONSCIENCE, conscience. Conscience का मतलब होता है अंतर आत्मा.
So the prick of conscience समझ सकते हो, that somewhere it's a middle English poem in which the writer tries to show. अच्छा, ये poem इसलिए भी important है क्योंकि इसकी 130 manuscript are found everywhere in different libraries. So we can understand that this is again a poem which is mostly studied as a important document in the development of English. अच्छा, इसका जैसे ऑर्म जो था वो एक मंक था, लेकिन आउल एंड द नाइटिंगेल के बारे में पता नहीं है दैट हु वाज इट्स ऑथर, बट दिस प्रिक ऑफ कॉन्शियंस के बारे में कहा जाता है कि रिचर्ड रॉल नाम का एक राइटर था इसका ऑथर. यू कैन राइट इट डाउन, रिचर्ड रॉल, ROLLE, क्योंकि कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट्स में, इन सम ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऐसा बता रखा है कि रिचर्ड रॉल ने इसको लिखा है. उसके बाद एक क्वेश्चन अगर आपको याद हो, फ्यू इयर्स बैक देयर वाज अ क्वेश्चन इन नेट एंड दैट वाज रिलेटेड टू दिस ड्रीम ऑफ द रूट. तो उसमें क्वेश्चन तो बहुत सिंपल पूछा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूट. तो रूट का मतलब एक्चुअल में होता है क्रॉस. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है. इसके ऊपर अगली बार से क्वेश्चन है. एक्चुअल में रूट वर्ड हैज कम फ्रॉम द वर्ड रॉड, एंड रॉड का मतलब होता है पोल. तो आपको मालूम है कि जब किसी को क्रूसीफाई किया जाता है तो एक बहुत बड़ा पेड़ टाइप का होता था, खंबा टाइप का, उसके ऊपर उसको ऐसे हाथों को ऐसे करके लटका दिया जाता था और उसके हाथों में. सो दिस पोएम इज क्रिश्चियन इन नेचर और इसके अंदर बहुत सारे. अच्छा, मुझे आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी देनी है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एंड दैट इज वर्चेली. एक आप वर्ड लिखिए, VERCELLI, वर्चेली. ये वर्चेली क्या है? 10th सेंचुरी की एक बुक है जिसमें ये पोएम पाई गई है. नाम क्या है पोएम का? द ड्रीम ऑफ द रूट. सो अगेन पर्सोनिफिकेशन इज डन. जो ड्रीम ऑफ अ रूट मतलब जो क्रॉस है लकड़ी का बना हुआ, वो सपना ले रहा है. सो एक्चुअली पर्सोनिफिकेशन इज डन इन दिस पोएम, एंड अगेन दिस इज कंसिडर्ड टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको वो पूछ लिया है. और ये जो क्रॉस है वो कहां पाया गया है? रुथवेल क्रॉस के ऊपर ये पोएम लिखी गई है. रुथवेल एक जगह का नाम है, लिख लीजिए, RUTHWELL. ठीक है. ऐसा कहा जाता है कि दिस द ड्रीम ऑफ द रूट इज कंसिडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट वर्क ऑफ द ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर. अगर हम ओल्डेस्ट वर्क की तरफ जाएं, क्योंकि इंग्लिश जो एलिमेंट है वो इसमें ज्यादा है. और सम स्टूडेंट्स कैन आर्ग्यू दैट बेओवुल्फ इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट. लेकिन बेओवुल्फ जो है उसका जो सेटिंग है दैट इज स्कैंडिनेवियन. हालांकि उसके अंदर भी बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं, बट दैट पोएम बेओवुल्फ, BEOWULF. मेरा टारगेट आज की क्लास में रहेगा कि आई विल बी जस्ट टॉकिंग अबाउट सो मेनी डिफरेंट terms, so many different poems, their details, and also that it can be beneficial for the students who are listening to me. अभी जैसे मैंने वर्ची का नाम लिया, रुथवेल क्रॉस का नाम लिया, है ना, और अभी मैंने ये बताया कि रूट का क्या मतलब होता है. अच्छा, एक और बात है कि जो ओल्ड इंग्लिश तो उसमें एक तो आपको एलिटरेटिव वर्ड्स वो बहुत. एलिटरेटिव वर्ड्स क्या होता है कि इट इज मोस्टली, एज यू ऑल नो दैट इन एंशिएंट written to be sung. It was an oral literature, oral tradition. तो ओरल ट्रेडिशन जब होगा तो आपको मालूम है कि उसके अंदर सिंगिंग एलिमेंट ज्यादा रहेगा, सो दैट इट कैन बी मेलिफुलस, और से जैसे मैंने कल 2 वर्ड यूज किए थे, यूफोनियस, मतलब सुनने में अच्छा लगे. उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पोएम पे. एक वर्ड लिख लीजिए आप लोग, दैट इज विडसिथ, WIDSITH. ओल्ड इंग्लिश वर्ड है ये, विडसिथ के नाम से. इसमें एक पोएम आती है. विडसिथ एक कलेक्शन है, एक मैन्यूस्क्रिप्ट का कलेक्शन है, और विडसिथ और ये इस कलेक्शन में पाई जाती है. द एग्जेटर बुक. एग्जेटर बुक पे क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है एग्जाम में, सो इन द कमिंग एग्जाम यू कैन फाइंड दिस क्वेश्चन. एग्जेटर बुक, EXE. एग्जेटर बुक जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जिसमें ये सारी ओल्ड इंग्लिश पोएम्स पाई जाती हैं. तो विडसिथ का दूसरा नाम भी है, नाम है द ट्रैवलर्स सॉन्ग. सो द ट्रैवलर्स सॉन्ग को ही विडसिथ बोला जाता है. तो इसकी भी मैन्यूस्क्रिप्ट पाई गई है. सो वी कैन mark it, क्योंकि as you all know that in ancient times most of the work, whether they were the work of prose works तो mostly नहीं होते थे, mostly वो लोग लिखते थे poetry में, because poetry can be sung, it can be easily memorized.
ओके, सो विटसिथ जो है उसमें हीरोइक एलिमेंट है। जैसे अगर हम बेओवुल्फ की बात, वी विल बी कंपेयरिंग ऑलमोस्ट ऑल दीज पोएम्स विद बेओवुल्फ। बेओवुल्फ के अंदर हम पाते हैं देर आर ड्यूअल एलिमेंट्स प्रेजेंट। दो एलिमेंट्स इसमें हैं, एक तो स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंस की वजह से इसके अंदर क्रिश्चियन एलिमेंट है कुछ कुछ, और कुछ कुछ इसके अंदर पैगन एलिमेंट पाया जाता है। पैगन एलिमेंट का मतलब होता है, पैगन अगर आपको पता हो तो दोज पीपल who came later in the category, जैसे जब क्रिश्चियनिटी आई उसके पहले वो जो पैगन बोलते हैं। तो आपको ये भी क्वेश्चन आपको मतलब तैयार कर लेना चाहिए कि बेओवुल्फ जो पोएम है दैट इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ पैगन एलिमेंट एज वेल एज क्रिश्चियन एलिमेंट। तो जब मैं पैगन और क्रिश्चियन एलिमेंट की बात करता हूं, रिमेंबर, सो जब हम इंग्लिश लिटरेचर को प्योरली पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं, जैसे किंग लियर आपने पढ़ा होगा सभी ने, तो आपने नोटिस किया होगा कि किंग लियर में देयर इज नो क्रिश्चियन एलिमेंट, है ना। उसमें कहीं पर भी कोई चर्च का रेफरेंस नहीं आता है, क्राइस्ट का रेफरेंस नहीं आता है। सो देयर आर सर्टेन वर्क्स which even when Christianity flourished in England and it altogether became a Christian country, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि Christianity was a late arrival। क्रिश्चियनिटी के पहले लगभग सारे वर्ल्ड में the people were pagans। ओके, सो विटसिथ जो है वो अच्छा, जब आप पैगन होते हो तो अल्टीमेटली यू हैव टू नेचर, तो पहाड़ों में जाना है, जंगली जानवर, अल्टीमेटली यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। तो उस तरह की जो पोएम्स होती है इसमें आपको देखो एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि जब हम क्रिश्चियन चीज की बात करते हैं तो इट्स समवेयर मोर सिविलाइज्ड वर्ल्ड। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एनी लिटरेचर विच हैज पैगन एलिमेंट इज अनसिविलाइज्ड लिटरेचर, बट कहीं ना कहीं आपका जो नेचर के साथ में एक एंटेंगलमेंट और जो स्ट्रगल है वो जब आप दिखाओगे तो ह्यूमन बीइंग को आप एक हीरो की तरह प्रस्तुत करोगे। जब हम क्रिश्चियन एलिमेंट देखते हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा मोरालिटीज का जो टच है वो ज्यादा आ जाता है, और हम देखते हैं कि उन पोएम्स के अंदर क्राइस्ट का जो सेक्रीफाइस है, तो एक सिविलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दैट यू शुड नॉट वर्क फॉर योरसेल्फ, यू शुड सेक्रीफाइस बीइंग्स इन सोसाइटी। बहुत कुछ कहा जा सकता है। वी कैन डिस्कस लॉट मेनी थिंग्स व्हेन विल बी डिस्कसिंग लाइक व्हाट इज क्रिश्चियन एलिमेंट एंड व्हाट इज पैगन एलिमेंट। तो अभी बात चल रही थी विटसिथ के बारे में, द ट्रैवलर्स सॉन्ग। तो अभी हमने बहुत सारी पोएम्स के नाम ले लिए। आउल एंड नाइटिंगेल का हमने रेफरेंस पढ़ा, हमने ऑर्म्युलम का रेफरेंस पढ़ा, हमने अभी थोड़ा सा बातचीत की है द ड्रीम ऑफ द रूट के बारे में। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट विटसिथ जिसका दूसरा नाम है द ट्रैवलर सॉन्ग। इसमें हीरोइक पोइट्री की बात चलती है, और हमें यह भी पता होना चाहिए कि 1066 में विलियम द कॉन्करर ने इंग्लैंड को कॉन्कर किया, जो फ्रांस से आया था, जिसको नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट बोलते हैं। तो ये उससे पहले 76 के आसपास से पोएम मिली है, तो इसका मतलब है उसमें पहले के, तो जो भी अटैक कॉन्क्वेस्ट का ये मतलब तो है नहीं कि दैट वाज द लास्ट कॉन्क्वेस्ट। इट मींस पहले भी वाइकिंग अटैक्स हुए थे इंग्लैंड के अंदर, तो इसका मतलब है कि अटैक्स को लेकर के नेचर के साथ आपका क्या एक रोल है, ये सब चीजें इन सब पोएम्स में पढ़ने को मिलती है। अब आती है कि भाई मैं अभी बात कर रहा था एलिटरेटिव वर्ड्स के बारे में, है ना। तो अभी मैंने एग्जेटर बुक के बारे में बात की है। एक वर्ड आप और लिख लीजिए, दैट इज कोडेक्स। ये वर्ड आप अभी तक एग्जाम ने नहीं पूछा है, लेकिन अब दे आर गोइंग दिस इन द कमिंग एग्जाम। दैट इज कोडेक्स का मतलब होता है बुक। ओके, कोडेक्स एक लैटिन वर्ड है, और इसमें इसका प्लूरल जो होता है वो होता है कोडिसिस। तो जितनी भी एंग्लो सेक्सन पोइट्री पाई गई है उसको अपन वो कोडेक्सिस में है, कोडिसिस बोलते हैं जिसको प्लूरल में। सो एक एक्चुअल में एग्जेटर, ये भी पूछ सकते हैं आपसे, एग्जेटर में कैथेड्रल है, उस कैथेड्रल में ये सारी बुक्स पाई जाती हैं। फिर से बताता हूं कि जो एग्जेटर बुक है वो, उस बुक का नाम फेमस क्यों है, क्योंकि एग्जेटर इज द नेम ऑफ अ प्लेस, वहां पे कैथेड्रल है। कैथेड्रल मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले, जहां पे बिशप्स के कुछ ना कुछ रिमेन्स रखे जाते हैं। ऐसे करके ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फिर एक और इंपॉर्टेंट पोएम की बात कर लेते हैं, दैट इज द वॉन्डरर, WANDERER, द वॉन्डरर। द वॉन्डरर इंग्लिश की एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। हालांकि इट्स नॉट अ वेरी बिग पोएम, इट इज हार्डली 115 लाइन पोएम,
तो इस पोएम का रेफरेंस एग्जाम में ऑलरेडी पूछ रखा है, क्योंकि ये एग्जिटर बुक में बहुत इंपॉर्टेंट पोएम की कैटेगरी में आती है. अनदर इंपॉर्टेंट ओल्ड इंग्लिश पोएम इज द सी फेरर, SEAFARER, सी फेरर. ये पोएम भी, दिस इज ऑल्सो नॉट अ वेरी लॉन्ग पोएम, इट हैज ओनली 124 लाइन्स इन इट. ओके. अच्छा, फिर अगेन सपोज दे कैन आस्क यू लाइक व्हाट इज द एग्जैक्ट फीचर ऑफ द ओल्ड इंग्लिश पोएट्री और एंग्लो सेक्सन पोएट्री. तो इसमें बार बार आपको एक बात का ध्यान रखना है, that in this these kind of poems, they have alliterative words and heroic, जैसे wanderer है, तो wanderer का मतलब ही क्या होता है, इधर उधर भटकने वाला. so somewhere survival, existence, इन सब की बात इसमें होती है. थोड़ा सा इसमें एक मेलंकली का मूड भी है इस पोएम के अंदर, उसके लिए भी ये फेमस है. अगली पोएम जो है उसका नाम आप लिख लीजिए, द वाइफ्स लेमेंट और द वाइफ्स कंप्लेंट. दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट पोएम. ये छोटी पोएम है, सो अगेन दे कैन मेक अ क्वेश्चन लाइक बाय गिविंग यू सर्टेन पोएम्स. जैसे ऑर्मुलम एक लंबी पोएम है, आउल एंड द नाइटिंगेल इज अ बिग पोएम, लेकिन ये जो बाकी की पोएम्स आई एम टॉकिंग अबाउट टुडे, वो थोड़ी छोटी हैं. वाइफ्स लेमेंट तो हार्डली इट्स अ पोएम ऑफ 53 लाइन्स. ओके. तो ये आपको वाइफ्स लेमेंट है तो समझ जाओ कि इसके अंदर देयर इज अ लेमेंट एंड मेलंकलिक एलिमेंट इन दिस. इसमें मेलंकलिक एलिमेंट है. इससे ज्यादा अब मैंने जो पीडीएफ है उसके अंदर हैरल्ड ब्लूम का नाम आपने सुना होगा, एक बहुत बड़े क्रिटिक हैं 20th सेंचुरी के. उन्होंने 4 एजेस में पूरे लिटरेचर को डिवाइड किया है. तो वो मैंने पीडीएफ में आपको दे रखा है, बट जरूरी नहीं है कि मैं आज उसकी बात करूं, बट आई विल बी जस्ट टॉकिंग अबाउट, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो लोग कि हैरल्ड ब्लूम जो है उन्होंने कौन से 4 एजेस में लिटरेचर को डिवाइड किया है. सो द फर्स्ट वन इज, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द कमिंग एग्जाम. थियोक्रेटिक एज है. उस थियोक्रेटिक एज की, हैरल्ड ब्लूम 20th सेंचुरी के राइटर हैं. पुरानी इंग्लिश को पढ़ करके, एंग्लो सेक्सन इंग्लिश के लिटरेचर को पढ़ करके, एंड मॉडर्न तो वो है ही. तो आफ्टर रीडिंग द होल लिटरेचर, जितना भी ये मैमथ लिटरेचर, इसको पढ़ करके ही डिवाइडेड, लाइक सारे लिटरेचर को हम डिवाइड कर सकते हैं इन हिस्सों में. तो पीडीएफ पे मैंने सारा मटेरियल दे दिया है, बट टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट द लिटरेचर है. उसमें कहीं ना कहीं यू जस्ट गो टू एनी सिविलाइजेशन, दे आर मोस्टली टॉकिंग अबाउट रिलीजन, है ना. हमारे इंडिया में भी जितने भी पुराने लिटरेचर है उसमें सारे हमारे उपनिषद और वेद और ये सब आ जाते हैं. तो है 2000 बिफोर क्राइस्ट टू 1321 AD. तो दे कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन, क्योंकि इस नेचर के क्वेश्चन उन्होंने पहले भी पूछ रखे हैं. ओके. और इसमें उन्होंने इंडिया का कौन सा वर्क लिया है, तो उन्होंने महाभारत और इन सब वर्क्स को लिया है. एंशिएंट वर्क में गिलगमेश का नाम लिया है. गिलगमेश का नाम एग्जाम में ऑप्शंस में पूछ रखा है, तो यू कैन राइट इट्स एन एपिक एक्चुअली. गिलगमेश, द बुक ऑफ द डेड एंड द बाइबल, ये सब चीजें, ये अलग अलग कल्चर के एंशिएंट वर्क्स हैं. और एंशिएंट ग्रीस के अगर हम वर्क लें तो आपको पता है इलियड का नाम आएगा, ओडिसी जो होमर ने लिखी थी, और सोफोक्लिस का भी बड़े बड़े ड्रामेटिस्ट हुए हैं ग्रीक कल्चर में. ओके. सो ईस्ट, नियर ईस्ट के अंदर अगर हम चले जाएं तो गिलगमेश का नाम आ रहा है. एंशिएंट इंडिया में चले जाएं तो रामायण महाभारत तो वेदास का नाम आ रहा है. और एंशिएंट ग्रीस में चले जाएं तो इलियड, ओडिसी और इडिपस रेक्स जो सोफोक्लिस का मेजर प्ले है. रोम में चले जाएं तो एनीड का नाम आ रहा है. मिडिल एजेस में चले जाएं तो सेंट ऑगस्टाइन का कन्फेशंस. ये उन्होंने थियोक्रेटिक एज मानी है कि दीज आर द मेजर वर्क्स. एंड स्टूडेंट्स, यू विल बी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि अभी आप कोई भी बुक फेयर में जाते हो ना, तो ऑल दीज वर्क्स आर अवेलेबल देयर. ओके. सेकेंड जो एज हैरल्ड ब्लूम ने ली है, दैट इज एरिस्टोक्रेटिक एज. अब एरिस्टोक्रेटिक एज है तो इसका मतलब है कि समवेयर द किंग्स एंड द क्वींस आर देयर. एंड उसमें उन्होंने जो डेट ली है, दैट इज 1321 टू 1832. Can you all see me? Can you hear me? Because there is no electricity today, and I think there must be some connectivity problem. You kindly write yes if you can hear me. Am I really live? Kindly type and show that you can listen to me, you can see me. No answer comes. Can you see me? Hello? I'll wait for your reply.
Hello, can you see me? I hope there is no connectivity problem. Hello. Is there any connectivity problem today? Hello friends, you are not replying. I don't know why. Okay. So the in the aristocratic age, five major bodies of literature the writer has talked about, and they are Divine Comedy. Divine Comedy, you all know, it has a lasting effect, on the literature of. It was written by Dante, and it is an Italian work. And The Prince by Machiavelli, द कैरल गोल्डोनी का एक और नाम बड़ा फेमस है जिन्होंने लिखी थी द सर्वेंट ऑफ टू मास्टर्स, द सर्वेंट ऑफ टू मास्टर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है. देन देर वर मिसएंथ्रोप का नाम सुना होगा आपने, मॉलियर का वर्क है. वॉल्टेयर का लिखा हुआ कैंडिड जो नॉवल है वो बहुत फेमस है. ये एज इन्होंने ली 1321 से 1832 तक. ओके. जर्मनी में क्या लिखा गया था? जर्मनी के अंदर लिखा गया था द रॉबर्ट्स, ये शिलर का लिखा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है. फॉस्ट का नाम सुना होगा. अभी 2 नेट पहले दे आस्क्ड अस अ क्वेश्चन. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्रिस्टोफर मार्लोज डॉक्टर फॉस्टस. फॉस्ट इज एक्चुअली अ ग्रेट वर्क ऑफ जर्मनी. एंड इसके अलावा जाते हैं क्योंकि 1830 मतलब है कि रोमांटिक एज के आसपास जर्मन रोमांटिसिज्म का भी इसमें रेफरेंस आ रहा है. हेरल्ड ब्लूम ने वो भी रेफरेंस लिया है. एंड स्पेन के अंदर चले जाए तो डॉन क्विक्सॉट का रेफरेंस आता है. अब डॉन क्विक्सॉट के ऊपर भी क्वेश्चन आ रखा है हमारे नेट के अंदर, ठीक है, और जो सर्वेंटीज ने लिखा था अगर आपको याद हो तो. द ट्रिक्स्टर ऑफ सर्विल, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. और इसके अलावा जब ग्रेट ब्रिटेन का अगर नाम लें, यानी कि आयरलैंड और स्कॉटलैंड और इन सब के वर्क्स लें, तो हैमलेट शेक्सपियर का, पैराडाइज लॉर्ड जॉन मिल्टन का, जॉनथन स्विफ्ट के गुलिवर ट्रेवल्स एंड ऑल. सो ही हैज टेकन ऑल दीज वर्क्स इन द एरिस्टोक्रेटिक क्लास. फिर आ जाता है 1832 में, क्योंकि आपको मालूम है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद का पीरियड है टिल 1900. इसको उन्होंने द डेमोक्रेटिक एज कहा. तो ये सब मैंने आपको पीडीएफ में दे रखा है, यू कैन स्टडी इट. द डेमोक्रेटिक एज का जो पीरियड माना है दैट इज फ्रॉम 1832 टू 1900. और इसमें उन्होंने ही हैज टेकन ऑलमोस्ट मेनी वर्क्स ऑफ लाइक फ्लॉबर्ट का वर्क लिया है फ्रांस के अंदर. इटली के अंदर इन्होंने मैंजनी का वर्क लिया है. अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो प्राइड एंड प्रेजुडिस, द एडवेंचर्स ऑफ ओलिवर ट्विस्ट यानी कि डिकेंस के नॉवेल्स लिए हैं. और ऑस्कर वाइल्ड का द पिक्चर ऑफ द डोरियन ग्रे, ऐसे करके ये इंपॉर्टेंट वर्क्स की कैटेगरी में आते हैं. ऐसे ही रशिया में अगर हम बात करें तो क्राइम एंड पनिशमेंट जो दोस्तोवस्की का लिखा हुआ है, लियो टॉल्स्टॉय का एना करेनिना, वॉर एंड पीस, दीज वर्क्स ही हैज टेकन इनटू कंसिडरेशन. इसी एज में उन्होंने काफका का मेटामॉर्फोसिस भी लिया है. अब काफका का इन सभी पे क्वेश्चन आ रखे हैं. इसका मतलब है दिस पर्टिकुलर लेक्चर गोज एंग्लो सेक्शन से हम लोग देखते हैं कि वर्ल्ड लिटरेचर की तरफ हम बढ़ रहे हैं. फिर एक एज का उन्होंने नाम लिया है द केओटिक एज. केओटिक एज में कौन सा रेफरेंस आता है? दे कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन, दैट इज फ्रॉम 1900 टू टिल टुडे. तो विच कंट्रीज, बहुत सारे कंट्रीज आ रहे जिसमें यूनाइटेड किंगडम आ गया, इटली आ गया, फ्रांस आ गया, जर्मनी, इसमें बहुत सारे, जैसे टॉमस मैन का द मैजिक माउंटेन ले लिया, फ्रेंच काफका का द कासल ले लिया. और ये बहुत सारे वर्क्स इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर द ग्रेट गैट्सबी को ले लिया. तो ऐसे करके राइटर्स को भी ले लिया, जैसे द अ ग्रेन ऑफ व्हीट है, थियोंगो का लिखा हुआ है, आपको याद होगा, है ना. तो ऐसे करके ये 4 एजेस में उन्होंने बांटा है. इस पर एक क्वेश्चन बनता है. अब हम बात करते हैं आज की वीडियो में, इसको और इंपॉर्टेंट बनाते हैं कि बुक पब्लिशिंग को लेकर के जब हम लोग लिटरेरी टर्म की कोई बुक, तो उस लिटरेरी टर्म की बुक में कुछ टर्म्स आती हैं जिनके ऊपर वो क्वेश्चन पूछते रहते हैं. लाइक इन यस्टरडेज क्लास आई वाज टॉकिंग अबाउट, जैसे अगर कोई आपसे पूछ ले कि व्हाट इज द व्हाट आर एग्जैक्टली रेक्टोज एंड वर्सोज, तो आपको मालूम होना चाहिए कि पब्लिशिंग में जैसे हम बात कर रहे थे क्वार्टो, ऑक्टेवियो, है ना, डियोडेसिमो,
तो ये जो बुक्स के अलग अलग साइजेस होते हैं, उसमें जब हम बुक को खोलते हैं तो जो राइट हैंड साइड है उसको रेक्टो बोला जाता है, एंड द लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड वर्सो. तो रेक्टो एंड वर्सो का, लाइक व्हाट इज रेक्टो एंड वर्सो, और व्हाट इज द डिफरेंस. इसके अलावा कोडेक्स, आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू इन दिस लेक्चर दैट कोडेक्स मींस बुक, उसका प्लूरल होता है कोडेसेस. फिर है वेलम, एक वर्ड पूछ सकते हैं आपसे. ये सारे वर्ड्स लिटरेरी टर्म्स की बुक में इंपॉर्टेंट तरीके से दे रखे होते हैं, एंड वो जब आपको एग्जाम में पूछेंगे तभी आपको पता चलेगा कि हाँ, दे आर रियली इंपॉर्टेंट. वेलम एक वर्ड है. वेलम का मतलब होता है स्किन. तो व्हेन यू नो पेपर वाज नॉट डिस्कवर्ड और से इन्वेंटेड, तो आपको मालूम है कि वो चमड़े के ऊपर लिखा करते थे. हमारे यहाँ पे ताम्र पत्र पे लिखते थे, भोज पत्र पे लिखते थे, तो उनके यहाँ पे चमड़े पर लिखते थे, उसको वेलम बोलते हैं, VELLUM. तो वेलम, दे कैन आस्क यू द मीनिंग ऑफ वेलम. देन पार्चमेंट, दे कैन आस्क यू अ वर्ड. आप इनको गूगल करके देखिएगा, यू विल फाइंड दैट दीज आर रियली टर्म्स एंड दे कैन आस्क यू. पार्चमेंट का मतलब होता है राइटिंग मटेरियल, वो भी एक तरह का वेलम होता है. नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेलम एंड पार्चमेंट. पार्चमेंट कैन बी द हाइड और से स्किन ऑफ एनी डेड एनिमल, ओके, बट वेलम इज सॉफ्ट वर्ड. जैसे कोई काफ है, छोटा काफ, उसकी स्किन है, तो वो थोड़ा अमीर लोगों की बुक्स उस पर लिखी जाती थी, वो थोड़ी महंगी बिकती थी, ओके. देन इफ यू रिमेंबर, जो लास्ट नेट का एग्जाम हुआ है लास्ट, उसमें क्वेश्चन आया था कि यूनिसेफ ने पैम्फलेट का क्या डेफिनेशन दिया है. नाउ यू विल बी सरप्राइज्ड कि ये क्वेश्चन, जबकि हमने अपने क्लासेस में इसको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, तो मेरे स्टूडेंट को मैंने बताया, क्योंकि पैम्फलेट, जैसे मैंने कल पूछा था आपसे कि, तो हमें मालूम है कि वो ऑलिवर क्रॉमवेल के पैम्फलेटियर थे. तो पैम्फलेट वर्ड बार बार हमारे आंखों के सामने से गुजरता है, बट वी एग्जैक्टली डू नॉट नो द डेफिनेशन ऑफ पैम्फलेट. तो पैम्फलेट एक्चुअल में क्या है, एक अनबाउंड बुक होती है, और इसका मतलब को हार्ड कवर नहीं होता है. अभी लोकल मीनिंग जो पता नहीं कहां से आ गया है, वो जो हम लोग हैंडबिल्स सड़क पर बंटवाते हैं ना, उनको कुछ लोग पैम्फलेट्स बोलते हैं, कुछ लोग उसको पैम्फलेट, दे डोंट प्रोनाउंस इट प्रॉपर्ली, वो उसको पंपलेट बोलते हैं, अगर आपने सुना हो तो. इट्स नॉट पंपलेट, इट्स पैम्फलेट, ओके. एंड पैम्फलेट की जो डेफिनेशन है यूनेस्को ने वो दी है कि कम से कम 5 पेज उसमें हो. तो अभी क्वेश्चन आया था कि 10 पेज हो, 5 हो, 20 हो, 40 हो, ऐसे करके देवर ऑप्शंस. तो यूनिसेफ की जो डेफिनेशन है उसमें एक्चुअल में क्या है, पीरियोडिकल्स जब छपते हैं, या पहले के जमाने में आपको पार्लियामेंट में जाकर के कोई बात कहनी है, जैसे मिल्टन ने, आपको मालूम है, एरोपेजेटिका जो था, वो जो पब्लिशिंग के अंदर जो कॉपीराइट है उसको लेकर के, और किस तरह से सरकार ने उनके ऊपर बैन लगाया था पब्लिशिंग को लेकर के, तो करने के लिए उन्होंने हैंडबिल बांटे थे. तो ही वॉज अ पैम्फलेटियर. तो 5-6 पेज में, 10 पेज में अगर आप आराम से लिख देते हो, मिनिमम 5 पेज होने चाहिए, तब हम उसको बोलते हैं कि वो एक पैम्फलेट है, ठीक है. स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स रिलेटिंग टू बुक प्रोडक्शन एंड पीरियड, को मैं इसको डिफाइन किया कि भाई इसमें क्या मिनिमम हो सकता है, ओके. उसके बाद हम आते हैं इनक्यूनेबुला. ये टर्म ऑलरेडी एग्जाम में पूछ रखी है. इंग्लिश लिटरेचर के एग्जाम में अगर आपको इस तरह की टर्म्स पूछते हैं, तो देन वी शुड बी bit serious about this terminology and all. इनक्यूनेबुला का एक्चुअल मतलब क्या होता है, जब कोई छोटा बच्चा होता है तो उसके जो नैपीज होते हैं, जिसको हम शुद्ध हिंदी में बोलते हैं पोतड़े. तो आपको मालूम है कि इन द वेरी स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द बुक पब्लिशिंग, जो उसकी कवरिंग वगैरह होती थी, उसकी जो बाइंडिंग होती थी, दैट वाज नॉट वेरी रिफाइंड वन. तो जो मतलब 16th सेंचुरी बुक्स छपी हैं, उनकी बाइंडिंग अच्छी नहीं है, तो ऐसा लगता है जैसे वो जैसे किसी ने पैंट नहीं पहनी हो, या किसी ने बहुत अच्छी तरह से अपने आप को ढका नहीं हो. तो वहां से एक टर्म निकली है, इनक्यूनेबुलम. एक एग्जैक्ट वर्ड है, उसका प्लूरल है इनक्यूनेबुला, INCUNABULUM, इनक्यूनेबुलम. इसका प्लूरल है इनक्यूनेबुला, ठीक है. तो ये भी एक टर्म हमने डिस्कस कर ली क्लास में. अब हम बात करते हैं एक नाम लिखिए पोएम का. उससे पहले मैं एक वर्ड और डिस्कस कर लेता हूं आपसे. कितने बच्चे क्लास में जिनको ये मालूम है कि व्हाट इज डस्ट जैकेट? अब आपको मालूम है कि जब हम लोग बुक बाइंडिंग की बात करते हैं, तो जैसे कोई भी बुक है, जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में ये पीटर पैन एक बुक है, एक है ना, तो ये जो इसके ऊपर ये जो सबसे फर्स्ट कवर जो इसका होता है, इसको हम लोग इंग्लिश में टेक्निकल लैंग्वेज में डस्ट जैकेट बोलते हैं, ठीक है.
तो पता होना चाहिए कि डस्ट जैकेट और बुक जैकेट, डस्ट रैपर, डस्ट कवर, ऐसे करके इसको मतलब बोला जाता है। तो दे कैन आस्क यू, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो गाइड से काम चलाती है, रेफरेंस बुक से काम चलाती है। ज्यादातर स्टूडेंट्स आई हैव कम अक्रॉस दैट दे डोंट विजिट लाइब्रेरीज एंड ऑल, तो उनको शायद ये टर्मिनोलॉजीज नहीं आती हैं। दैट कैन बी अ रीजन दैट दे हैव बीन आस्किंग अस। ठीक है, फिर मैंने कल आपसे बात की थी कि जब हम लोग जैसे एक पेज है मेरे हाथ में, ये फुल स्केप पेज मान लो कोई भी पेज है, अब उस पेज को जब हम कितने तरीके से फोल्ड कर लेते हैं तो उससे बुक्स बनती थी अलग अलग उस जमाने में। तो जैसे एक पेज है और उस पेज को अगर हमने दो हिस्सों में बांट लिया, अच्छा जो मेजर साइज होता है, तो फुल स्केप का मीनिंग भी आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं वो 100%। आई हैव बीन डिलीवरिंग दीज काइंड ऑफ लेक्चर्स फॉर लास्ट 20 ईयर्स और उनमें से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, बार आ ही जाते हैं। ओके, तो एक फुल स्केप जो पेज है उसका साइज आपसे पूछ सकते हैं, उसको अगर आपने दो हिस्सों में बांट लिया, ओके, तो आपने कितने पेज बन गए जिसमें लिख सकते हैं बताइए? 4, क्योंकि एक पेज के अपन दो तरफ लिख सकते हैं। तो जब उसको एक बार फोल्ड कर लिया तो देन देयर आर 4 लीव्स। ओके, तो लीफ का मतलब भी पेज को बोलते हैं, लीफ से बना है। पेज आजकल बोलने लगे, अभी भी बहुत छोटी बुक होती तो लीफलेट बोलते हैं अपन उसको, क्या उसके आई एम टर्निंग द लीफलेट्स। ओके, अच्छा, अब अगर मान लीजिए आपने एक पेज को एक बार मोड़ा तो 4 पेज बन गए। अब आपने उसको इस तरह से मोड़ा कि उसके 8 पेज बन गए, तो अपन उसको बोलते हैं ऑक्टेवियो। और एक्चुअली उसमें उसका साइज होता है वो पर्टिकुलर, अगर इतनी बड़ी बुक का आप ऑक्टेवियो नहीं बना सकते। हालांकि आज पब्लिशिंग बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है और वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स इन द मार्केट। और अगर आपने पेज को कुछ इस तरह से मोड़ा, मान लीजिए एक पेज को आपने कुछ इस तरह से मोड़ा कि उसके 6 लीव्स बन गए, तो 12 तरफ लिखा जा सकता है ना। तो हम उसको बोलेंगे ड्यूओडेसिमो। डेसिमो का मतलब 10, ड्यूओ मतलब 2, तो 10 में 2 जोड़ो तो 12, तो ड्यूओडेसिमो एक टर्म आपको सीखने को मिल जाएगी। ठीक है, डस्ट जैकेट भी मैंने आपको समझा दिया, क्वाटो आपको पहले से मालूम है। अब आप बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएम की, जिसपे क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि वो आपसे पूछ सकते हैं। पोएम का नाम है फ्रॉम टर्निप टाउन, TEENY, टीनी, टेट, TED, टेट, फ्रॉम टर्निप टाउन। ये 2007 में छपी हुई एक पोएम है और कहते हैं कि ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। नैनो पब्लिशिंग से छपी हुई सबसे छोटी किताब है। दिस इज द स्मॉलेस्ट बुक, टीनी। तो ये क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और लेट अस टॉक अबाउट, मैंने पीडीएफ में तो अभी बहुत सारी चीजें डाल रखी है। आई थिंक आज मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है। लेट मी टॉक अबाउट द ग्रेट वॉवल शिफ्ट। एक टर्म आप लिखिए ताकि इस वीडियो को, इस क्लास को हम और भी मीनिंगफुल बना सके। ग्रेट वॉवल शिफ्ट का क्या मतलब होता है कि जब एंग्लो नॉर्मल, एंग्लो सेक्सन लैंग्वेज से, ओल्ड इंग्लिश से, मिडिल इंग्लिश से होते हुए जब हम आज मॉडर्न इंग्लिश में आए हैं, तो आपको मालूम है कि द प्रोडक्शन ऑफ द साउंड जब हम मुंह से करते हैं तो इंग्लिश में एक वॉवल का पूरा सिस्टम है। तो जैसे जिस तरह से एक नेटिव स्पीकर अपना वॉवल बोलेगा, जैसे मान लीजिए एक नेटिव स्पीकर बैग को बोलेगा बैग, तो अब आपको पता है कि नॉर्थ इंडिया में वो ए की आवाज मोस्टली नहीं, इसका मतलब है जहां वॉवल प्रोड्यूस करना चाहिए वहां वॉवल प्रोड्यूस ना करके कहीं और। तो एक टीचर ऑफ, जब हम इंग्लिश लिटरेचर के साथ साथ हमें लैंग्वेज भी पढ़ानी पड़ती है जब हम कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में अपॉइंट होते हैं, तो जब आपको मान लीजिए आपको फोनेटिक्स पढ़ाने के लिए कहा गया या मान लीजिए आपको बेसिक इंग्लिश समझाने के लिए कहा गया, तो यू विल फाइंड दैट देयर विल बी अ ग्रेट प्रॉब्लम इन द प्रोनाउंसिएशन। फॉर एग्जाम्पल, न्यूट्रल प्रोनाउंसिएशन होना बहुत मुश्किल है क्योंकि आपका फॉसिलाइजेशन हो जाता है। ये भी एक टर्म है, फोनेटिक्स में पढ़ाई जाती है, फॉसिलाइजेशन। यू कैन राइट इट डाउन, FOSSILIZATION। फॉसिलाइजेशन क्या होता है? फॉसिल एक वर्ड आपको पता है, जब जीवाश्म बोलते हैं कि जीव मर गया और उसके ऊपर टाइम टू टाइम जब मिट्टी पड़ती रही तो वो उसका निशान पड़ जाता है। इन द सेम मैनर हमारी जो मदर टंग होती है उसका एक इफेक्ट हमारी टंग पे रहता है, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फॉसिलाइजेशन। तो ग्रेट वॉवल शिफ्ट क्यों कहा गया है? क्योंकि अगर डिटेल स्टडी, जैसे मैंने जो पीडीएफ आपको दी है, उस पीडीएफ में आप देखेंगे कि वो सारे वर्ड्स की लिस्ट है कि जब हम चौसर पढ़ते हैं
तो वी सी दैट अगर कोई चौसर या उससे पहले की कोई पोएम है, तो जितने भी थिंकर्स हैं या जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने किया है कि इस वर्ड को ऐसे बोला जाता था और आज ऐसे बोला जाता है. तो pronounced in the age before Shakespeare or around Shakespeare, sorry, before or around the way we speak it now, or it was spoken in the 17th or 16th century. So 13th century से लेकर के या 12th century से लेकर के 16th century तक रहने जो भी चेंजेस लैंग्वेज में आए, तो लैंग्वेज में आपको पता है कॉन्सोनेंट को लेकर के चेंजेस नहीं आते हैं. अगर हम ब बोलेंगे तो इंग्लिश भी ब ही बोलेगा. हालांकि देन देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द कॉन्सोनेंट्स ऑल्सो. जैसे जब हम इंग्लिश सिखाना है कि बोल, तो है ना, वो वी टीच स्टूडेंट्स के पॉज कहाँ करना है, स्ट्रेस कहाँ देना है, प्राइमरी स्ट्रेस कहाँ देना है, सेकेंडरी स्ट्रेस कहाँ देना है, इज इट मोनोपोली और मोनोपोली, इज इट मॉडर्निज्म और मॉडर्निटी, मॉडर्निटी और मॉडर्निटी, है ना. ऐसे करके बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं. ये तो मैं ऐसे डिस्कस कर रहा हूँ बीइंग अ टीचर. लेकिन ग्रेट वॉवल शिफ्ट की जब हम बात करते हैं तो जो सीरीज ऑफ चेंजेस पे हम स्टडी करते हैं. I think today a lot much problem is there in connectivity. I think connectivity issue is there. I'm so sorry, students. Can you hear me? I say पढ़ाई नहीं हो पा रही. Connectivity problem. It is not my fault because I have already taken a subscription of good Wi-Fi and all, but because of the problems in the connectivity. Can you hear me now? Hello? Can you hear me now? Okay. No, you can't hear me. Okay then. Okay then, I'll do one thing. I will take this class. What to do then? I'm sorry then if there is a problem in the connectivity, because there is electricity issue also in my area today. Now you can hear me? Okay. So I was talking about great vowel shift. And I think you must have heard me when I was giving the example of bilabial and plosives and all. Actually, the standardization of English, this particular work, अभी तक जो समझाया समझ नहीं आया. Oh my God, बकरा तो जान से गया. Oh my goodness. चलिए, कोई बात नहीं. So what I was talking about, I was simply talking about that when the English we speak today, the English people speak today is not the same English which they started with. English is a very late language actually, and I have there is in circulation one video also that native speaker, when you follow a native speaker, it is actually a futile effort. Why? Because you have a fossilization of your own tongue. You should not हमारे हिंदी में एक कहावत है ना, कौवा चला हंस की चाल और खुद की चाल भी खो बैठा. लेकिन पता है यहाँ पे बीइंग अ टीचर आई वुड लाइक टू से यू टू थिंग्स. जब हम ग्रेट वॉवल शिफ्ट की बात करते हैं, आप लोग लिख लीजिए, कोई बात नहीं. मैंने जो भी मैंने आज क्लास में पढ़ाया है उसमें मैंने कुछ नहीं, एक तो बहुत सारे टर्म्स के नाम लिए हैं, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ आपके लिए. हमने ऑर्म्युलम का नाम लिया जो कि पोएम है. हमने द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल का नाम लिया, आउल एंड द नाइटिंगेल, सॉरी, फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल का नाम सुना है क्या आपने? मेरे मुंह से जो पोएम का नाम निकला है आपने सुना है क्या? विक्रम सेठ की बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, लिख लीजिए आप लोग अपनी कॉपी में. विक्रम सेठ की एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है जिसका नाम है फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल. लेकिन अभी जो पोएम हमने आज क्लास में नाम लिया था, दैट वाज आउल एंड द नाइटिंगेल. फिर वॉन्डरर का, द सी फेरर का, विटसिट का नाम लिया मैंने आपकी क्लास में. मैंने द वाइफ्स लेमेंट का नाम लिया. मैंने द ड्रीम ऑफ द रूड का नाम लिया. ये सब ओल्ड इंग्लिश और मिडिल इंग्लिश की पोएम्स हैं और इन पे क्वेश्चन कुछ पे आ रखे हैं और कुछ पे आएंगे, ठीक है. और हम लोग
ग्रेट वॉवल शिफ्ट एक बहुत सिंपल सी चीज है. ग्रेट वॉवल शिफ्ट का क्या मतलब होता है? सीरीज ऑफ चेंजेस in the pronunciation of the English language that took place primarily between 1400 and 1700. ये क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि ग्रेट वॉवल शिफ्ट का पीरियड बताओ, तो 1400 से लेकर के 1700. चौसर की एज में जो लोग जिस तरह की लैंग्वेज बोलते थे वो 200 साल में बदलते 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 चेंज हो गए. बिगिनिंग सर्दर्न इंग्लैंड एंड टुडे हैविंग इन्फ्लुएंस्ड इफेक्टिवली ऑल डायलेक्ट्स ऑफ इंग्लिश. डायलेक्ट्स जो इंग्लैंड में बोली जाती है उन सब में वॉवल शिफ्ट हुआ है. Through this vowel shift, the pronunciation of the all Middle English long vowels was changed. Third question बन रहा है long vowel जैसे एग्जाम्पल देके बताता हूँ. लॉन्ग वॉवल शॉर्ट वॉवल तो आपको पता ही होगा, बट जहां हम बड़ी की मात्रा लगाते थे वहां छोटी की मात्रा लगाने लगे. ऐसे मान लीजिए आप लोग, ठीक है. जैसे मुझे ऐसे बोलना है कि शिफ्ट, तो शिफ्ट की जगह पहले के जमाने में इंग्लैंड में भी लोग बोलते थे शीफ्ट. तो यू नो दिस चेंज हैज अकर्ड. ओके, इसको बोलते हैं ग्रेट वॉवल. हालांकि ऐसा नहीं है, जब वॉवल चेंज होता है तो कॉन्सोनेंट भी चेंज होता है. तो इज समटाइम्स यूज्ड टू इंक्लूड दीज कॉन्सोनेंट चेंजेस आल्सो. तो कॉन्सोनेंट चेंजेस की व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट कॉन्सोनेंट चेंजेस, तो कॉन्सोनेंट चेंजेस में मैं क्या बात कर रहा था कि जैसे हमारे यहाँ पे ट कैसे बोलते हैं. अच्छा, एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, हम एस्पिरेटेड नहीं बोलते हैं. यू हैव अ यूनिट दीज डेज अबाउट इंडियन इंग्लिश एंड द ग्रोथ ऑफ इंडियन इंग्लिश. तो ग्रोथ ऑफ इंडियन इंग्लिश में हम मेजर चीज यही पढ़ते हैं कि हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर पीपल, फ्रॉम द स्टैंडर्ड इंग्लिश. तो इस पर भी थोड़ा सा लेक्चर ले लीजिए कि हम एस्पिरेटेड नहीं बोलते हैं. जैसे मुझे ऐसे बोलना है कि फैन चला दे, तो मैं बोलूंगा फैन चला दे. अब मेरे को ऐसे बोलना है कि यार मेरा पेन कहाँ गया, तो मैं तो बिकॉज आई मोस्टली ट्राई टू फॉलो द ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन, और से समटाइम्स जो एक बेसिक प्रोनाउंसिएशन होता है जिसको हम स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, मैं उसको फॉलो करने की कोशिश करता हूं. तो मैं बोलूंगा गिव मी माय पेन, ओके, या मैं ऐसे बोलूंगा कैट. लेकिन आम आदमी क्या बोलेगा? कैट. और जो बहुत ही लोकल होगा वो बोल देगा केट विंसलेट. तो इसका मतलब है कि ज्यादातर लोग एस्पिरेशन का इस्तेमाल नहीं करते. इसका मतलब है कि जब 1400 से 1700 तक जो वॉवल शिफ्ट हुआ है उसमें भी लोगों ने अपने वॉवल के साथ साथ कॉन्सोनेंट को भी. तो आपको जो क्वेश्चन बनेगा, दे विल आस्क यू अ क्वेश्चन दैट एग्जैक्टली देयर विल बी देयर वाज अ चेंज फ्रॉम द लॉन्ग वॉवल टू शॉर्ट वॉवल. बस इतना सा आपको याद रखना है, ठीक है. उसके बाद लेट अस टॉक अबाउट एक और टर्म मैं आज आपको सोशल लिंग्विस्टिक्स की दूंगा. दे कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन, दैट इज हाइपर करेक्शन. लिख लीजिए, हाइपर करेक्शन. अभी हाइपर करेक्शन क्या होता है आपको, जैसे द टर्म इटसेल्फ टेल्स अस लाइक हाइपर करेक्शन. हाइपर का मतलब होता है, आपने कई बार लोगों को देखा होगा, कुछ लोग ओवर एप्लीकेशन करते हैं अपनी इंग्लिश को लेकर के. फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि दैट माई कैट इज नॉट वेल टुडे. फिर मैं कोशिश करूंगा कि मैं कैट को इस तरह से बोलूं, माई कैट इज नॉट वेल टुडे. ओके, फिर मेरे को लगेगा अभी भी मैं अंग्रेज नहीं बन पाया पूरा. सो आई विल बी जस्ट चेंजिंग माई प्रोनाउंसिएशन अगेन एंड अगेन. सो हाइपर करेक्शन का मतलब क्या होता है? इज अ नॉन स्टैंडर्ड यूज ऑफ लैंग्वेज that results from the over application of a perceived rule of language usage prescription. A speaker or writer who produces a hypercorrection generally believes through a misunderstanding of such rules that the form is more correct, more standard or otherwise preferable. तो जैसे देखा जाए तो कम नॉलेज की वजह से हाइपर करेक्शन होता है. जरूरी नहीं कि लिटिल, इफ वी स्पीक लिटिल there is a little possibility, can you move a little bit. अब जरूरी है कि लिटिल को लिल बोलो कि मैं टी को खाई जाऊं, बिल्कुल कोई जरूरी नहीं है. लेकिन मान लीजिए किसी ने सुना है कि नहीं, टी तो बोलना ही नहीं है. मेरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्लास में कई बार बच्चों के साथ मैं बिल्कुल लिटरली उनसे मन मुटाव कर लेता हूं इस चीज को लेकर के कि इट इज पोएम, इट इज नॉट पोम, बट अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन इज पोम. सो आप देखोगे कि एक लोकल हिंदी बोलने वाला बच्चा, लड़का या लड़की, जब वो ओवर हाइपर करेक्शन करते हुए पोएम को बोलने लगेगा पोम, तो बड़ा अजीब नहीं लगेगा आपको देखने में. और ये अजीबपना जो चारों तरफ फैल रखा है, इसमें ये टर्म आई है हाइपर करेक्शन, ठीक है. और नेचुरल जो प्रोनाउंसिएशन है उसको ये काफी चेंज कर देती है. तो इस पे आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है. देन पीडीएफ में आप देखोगे मैंने बाकायदा वो लॉन्ग वॉवल से जो शॉर्ट वॉवल शिफ्ट होता है उसकी लिस्ट दे रखी है, पूरी लिस्ट दे रखी है मैं. अब लेट मी टॉक अबाउट द पोएम द केओस. एक पोएम का नाम लिखिए,
द Chaos, CHAOS। द Chaos जो है उस पर क्वेश्चन आएगा नेट के अंदर। ये डच राइटर हुए हैं, ही वॉज अ ट्रेवलर ऑल्सो। इनका नाम है जिरार्ड नॉल्स ट्रेनाइट। जिरार्ड GERARD, नॉल्स्ट NOLST, ट्रेनाइट TRENITE। ये कोई बहुत पुराने राइटर नहीं, अभी 20th सेंचुरी में जिंदा थे ये। 1946 में इनकी डेथ हुई है। तो इन्होंने एक पोएम लिखी थी द Chaos, वेयर यू नो he was a Dutch writer, okay, so he was ये लंबी पोएम है, और ये सभी स्पोकन इंग्लिश सिखाने वाले क्वालिफाइड टीचर्स दे ऑलवेज टॉक अबाउट दिस पोएम। मैंने कल भी अपने फेसबुक पेज पे अपलोड किया ये पोएम। मैंने शायद इस पोएम को अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दिया है, और आज हो सकता है कि मैं टेलीग्राम ग्रुप पे इसका ऑडियो भी डाल दूं, सभी और जो दूसरे ग्रुप्स हैं उनको भी दे दूं। मैं आई विल बी जस्ट स्पीकिंग दिस होल पोएम द वे इट इज स्पोकन। मतलब इसमें क्या है, राइटर ने बहुत सारे वर्ड्स लिए हैं, और उन वर्ड्स में जो सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स है, अब जैसे CAT कैट है, लेकिन KATE केट हो गया। सो वाई दीज साउंड्स यू नो कीप चेंजिंग इन ऑल। तो chaotic है, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन इज chaotic। तो जब हम लोग वॉवल शिफ्ट की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोनाउंसिएशन एंड ऑल, तो यू नो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब बात चलती है कि आज की क्लास तो मैं ये सारी चीज़ें तो मैं यहीं तक डिस्कस करूंगा। अब आप जाइए मेरे वेबसाइट पे जाइए और देखिए मैंने लेटेस्ट में क्या वहाँ पे अपलोड किया है। गो टू माई वेबसाइट mukeshparik.com, जाके मुझे जवाब दीजिए फटाफट से, हैव यू रीच देयर और नॉट। वी विल बी डिस्कसिंग, पोएम का नाम है द Chaos। मैंने अपने फेसबुक पेज पे और अपने टेलीग्राम चैनल पे उसको अपलोड कर दिया है, और आज मैं उस टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर उसका पूरा ऑडियो भी डालूंगा। ये सभी स्पोकन इंग्लिश सिखाने वाले टीचर्स, हम सभी टीचर्स जो इंग्लिश के टीचर्स हैं और जो नहीं है वो बनेंगे टीचर्स, दे शुड हैव वेरी फैंटास्टिक स्पोकन इंग्लिश। फर्स्ट ऑफ ऑल they should have correct pronunciation, whatever things you know we are talking about you know the vowel shift, we are talking about you know the local touch, you know the fossilization and all I you know discussed today, but that does not absolve you from being you know a knowledgeable teacher। हमको being a teacher of English एक तो thoroughly इंग्लिश में बोलना आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। if you don't know that you should practice। मैंने स्पोकन क्लासेस भी स्टार्ट कर दी हैं। किसी स्टूडेंट को अगर एडमिशन लेना है तो वो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करे, मैसेज करे, और मैं स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन भी सिखाता हूँ, और बहुत सारे बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं। तो यू विल बी सरप्राइज्ड के बहुत जल्दी बच्चा पिकअप करता है, और उसमें बहुत सारे आश्चर्य की बात है कि उसमें नेट कैंडिडेट्स ज़्यादा है। तो लेट अस टॉक अबाउट दिस Chaos पोएम का नाम आपको आ ही गया होगा। अच्छा, अब मैं आज बात करना चाहूँगा, इस लेक्चर को तो यहीं रोकते हैं। मैं सोच रहा हूं कि डेली वी विल बी डिस्कसिंग एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चंस फ्रॉम दी एग्जाम्स। आप एक बार मेरी वेबसाइट पे जाइए mukeshparik.com, देखिए आज का लेटेस्ट अपलोड क्या किया है मैंने। मुझे बताइए कि सर ये अपलोड कर रखा है आपने, प्लीज जल्दी से बताइए क्या अपलोड किया है मैंने, ताकि क्लास कंटिन्यू की जा सके। बताइए मैंने क्या अपलोड किया है वहां पे। मैंने 2013 दिसंबर का पेपर अपलोड किया है, लेकिन मैंने पूरा पेपर अपलोड नहीं किया है, उस पर ओनली 15 क्वेश्चंस अपलोड किए हैं। मैं आई वाज प्लानिंग कि मैं 15 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी डिस्कशन शुरू होगा तो आपको पता चलेगा कि 2 क्वेश्चन भी डिस्कस हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। काइंडली रिस्पॉन्ड, गो टू माई वेबसाइट mukeshparik.com, गो देयर, यू विल फाइंड द लेटेस्ट। मैंने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी ये क्वेश्चंस डाल दिए, फर्स्ट 15 क्वेश्चंस। मैंने कल एक क्विज डाला था, क्विज नंबर 45, उसमें 100 क्वेश्चंस हैं, उसको सॉल्व कीजिए, उसके आंसर्स मुझे दीजिए। जो बच्चे मुझसे जुड़ रहे हैं वो सीरियसली तैयारी शुरू करो, नहीं तो एग्जाम में सिलेक्शन मुश्किल है। केवल देख लेना टीचर को, चले जाना, ग्रुप का मेंबर बन जाना, केवल PDF मांगते रहना, these things are not important to get a selection। one has to work very hard। आप लोग जवाब नहीं दे रहे हैं। गो टू माई वेबसाइट, एंड वेबसाइट पे ब्लॉग पे जाइए, ब्लॉग पे मैंने अपलोड किया है पेपर। मुझे बताइए आपको पेपर मिल गया हो तो, ताकि हम सीरियस स्टडी शुरू कर सकें। काइंडली टेल मी, हैव यू गॉट द पेपर और नॉट। हैव यू गॉट द पेपर। दिस इज टुडेज लेटेस्ट अपडेट, सुबह ही मैंने अपलोड किया था।
एक पेपर को सॉल्व करने की एक टेक्निक होती है। तो मैं अगर टाइम नहीं ज़्यादा नहीं है अपने पास, इट्स ऑलरेडी 10:57, तो मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने के मूड में, अगर एक भी क्वेश्चन ढंग से डिस्कस हो गया, सो दैट इज गोइंग टू बी अ हेल्प टू मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कोई आंसर नहीं आ रहा है, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2013 दिसंबर का एक क्वेश्चन दे रखा है, वहां पे आ गया क्वेश्चन। चलिए, दैट्स गुड, थैंक गॉड एक आंसर आया मेरे पास। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स हरि कथा इज स्ट्रेटेजिकली यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ कॉन्शियसनेस रेजिंग? फर्स्ट क्वेश्चन, in which of the following novels Hari Katha is strategically used as a medium of consciousness raising? Okay, अब इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस हैं: वेटिंग फॉर द महात्मा, द सर्पेंट एंड द रोप, अ बैंड इन द गैंजेस एंड डी ए कांतापुरा। आंसर मैंने दे रखा है, लेकिन ये आंसर के लिए मैं यहां नहीं बैठा हूं। हाँ, अब देखिए इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आंसर क्या है? डी। लेकिन ऐसे आंसर नहीं डिस्कस करने के लिए, हम इसको कैसे डिस्कस करेंगे? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वेटिंग फॉर द महात्मा क्या है। पॉइंट बनाते जाइए, आप लोग लिखते जाइए। वेटिंग फॉर द महात्मा जो है, ये 1955 में पब्लिश हुआ आर के नारायण का नॉवल है। अब आर के नारायण का ये जो नॉवल है, इसके अंदर श्री राम करके, श्री राम इसका हीरो है। लिखते जाइए, ऐसे स्टडी करते हैं ताकि आपको पेपर सॉल्व करना आए कि पेपर कैसे सॉल्व करते हैं। आपने देखा होगा जितने भी ये सो कॉल्ड मॉडर्न टीचर्स है ना, जो बहुत फेमस हो रखे हैं, उन्होंने अपनी वेबसाइट्स के ऊपर आंसर्स के साथ ये ए आंसर, बी आंसर, डी आंसर, सी आंसर, ऐसे आंसर्स डाल रखे हैं। लेकिन मेरे जितने भी स्टूडेंट मुझसे पढ़े हुए हैं या अभी जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है, उनको मालूम है, हम जब पेपर डिस्कस करते हैं, मैंने 2-3 क्विज डिस्कस करके अपने यूट्यूब पे डाल रखा है। आप उस पर अपलोड पे जाइए, आप देखिए कि एक क्वेश्चन को डिस्कस करने में 20 मिनट खर्च होते हैं, तब जाकर के एक ऑर्गेनिक तरीके से आपके दिमाग में नेट के क्वेश्चन सॉल्व करना आता है। अब एक बात बताइए, वेटिंग फॉर द महात्मा हमारा पढ़ा हुआ नहीं है, ज्यादातर लोगों के कोर्स में नहीं होता है। ये नॉवल क्यों पूछा यहां पे? व्हाई दे हैव गिवन अस दिस एज अ चॉइस? बिकॉज दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी एम्बिगुअस नॉवल। इस नॉवल में आर के नारायण के बारे में आप सब जानते हो। एक तो उनका मालगुडी बहुत फेमस है, जो एक इमेजिनरी टाउन है ना। उसके अलावा द वेंडर ऑफ स्वीट्स के लिए जाने जाते हैं। मालगुडी डेज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत सारे नॉवेल्स इन्होंने लिखे हैं। लेकिन ये नॉवल क्यों यहाँ पे दिया है उन्होंने? क्योंकि इस नॉवल में एम्बिगस फिगर ऑफ महात्मा गांधी आया। ही हैज मेड फन ऑफ महात्मा गांधी। इस नॉवल के अंदर 90 मतलब एक कैरेक्टर्स के नाम लिख लीजिए। एक कैरेक्टर है इसमें भारती, तो जो श्री राम है, भारती एक लड़की है, उससे उसको प्यार हो जाता है। अब भारत में 40s 50s के अंदर ये कहानी दिखा रहे हैं, उस वक्त ज्यादातर प्यार नहीं होता था, बिकॉज बट द राइटर हैज शोन दिस, बिकॉज दिस राइटर हैज रिटन दिस नॉवल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ वेस्टर्नर। वेस्टर्न पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए ये नॉवल लिखा गया है। इट मीन्स इट डज नॉट सूट द एग्जैक्ट सोशियो पॉलिटिकल सिनारियो ऑफ इंडिया। और आपने कई बार देखा होगा आर के नारायण को, कि आर के नारायण जैसे उन्होंने गांधीवाद जो है, गांधीइज्म जिसको बोलते हैं, नॉन वायलेंस जो है, इन चीजों का बहुत टंग इन द चीक मजाक उड़ाया है। जैसे वेंडर ऑफ स्वीट्स पढ़िए, ही हैज क्रिएटेड अ कैरेक्टर समवेयर हु इज अ गांधीवादी, बट वो जो कैरेक्टर है उसका मजाक उड़ा रहा है राइटर। इससे पता चलता है कि जब हम लोग बहुत यूलोजाइज करते हैं, ज्ञानपीठ अवार्ड दे देते हैं, फिर हमें धीरे धीरे जब रिसर्च होती है तो पता चलता है कि कहीं ना कहीं ही इज नॉट प्रेजिंग गांधी जी। तो एक तो ये नॉवल इसलिए फेमस है। इसमें क्विट इंडिया मूवमेंट का रेफरेंस आता है, इसके लिए भी ये फेमस है, और इसमें पार्टीशन का सीन दिखाया गया है। और इस तरह से ये नॉवल मतलब इसमें कॉमिक एलिमेंट बहुत ज्यादा है। महात्मा गांधी को किस तरह से ये जो लड़का है श्री राम, जो हमारा हीरो है, ये अपनी दादी से बहुत अटैच्ड है। दादी के अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं। इधर गांधी मूवमेंट चल रहा है एंड ही पार्टिसिपेट्स इन द क्विट इंडिया मूवमेंट, और वो अपने गांव में, लोकल एरिया में जो विदेशी वस्त्रों की जो होली वगैरह जलाता है, और जिस तरह से वो नॉन वायलेंस को अडॉप्ट करता है और जेल चला जाता है, तो किस तरह से लोग बात करते हैं। सो द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडियंस
को दिया गया है, लेकिन दे आर नॉट प्रेजिंग गांधी एंड नॉन वायलेंट मूवमेंट ऑफ गांधी, क्योंकि वो वेस्टर्नर्स को खुश करने के लिए लिखा गया, इसलिए ये नॉवल इंपॉर्टेंट है। और स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स जो इनका लिखा हुआ है, या कि गाइड जो इनका लिखा हुआ है, उन सभी नॉवेल्स में अगर मान लीजिए मैं लेक्चर को एक्सटेंड करूं, तो आप अगर गाइड का एंडिंग पढ़े आप, तो हैव यू सीन दैट इट्स एन ओपन एंडेड नॉवल एंड द राइटर हैज समवेयर मेड dubious, the ending is dubious, कि जो भारत जो कि संतों का देश है, तो उसमें ही हैज मेड फन ऑफ हिंदुइज्म। हालांकि उन्होंने रामायण और महाभारत को ट्रांसलेट करके उनके ऊपर कहानियां लिखी हैं। तो ऐसे करके जैसे आपने देखा होगा कि द इंग्लिश टीचर में उन्होंने ही हैज मेड फन ऑफ इंडियन कल्चर, जिसमें उन्होंने प्रेज किया है, ऐसे करके मतलब अंग्रेजों को और उनके सिलेबस को प्रेज किया है। और ऐसे करके मैं कहना चाह रहा हूं कि यहां पे ये ऑप्शन क्यों है। दूसरा इंपॉर्टेंट नॉवल है द सर्पेंट एंड द रोप। अब द सर्पेंट एंड द रोप है, जिससे आपको पता चल रहा है कि सर्पेंट सांप होता है और रस्सी जो है वो सांप की तरह लग सकती है कभी कभी, है ना। इसका मतलब है कि इल्यूजन एंड रियलिटी। अब आपको मालूम होना चाहिए कि राजा राव जो है, हमारे यहाँ पे 3 बड़े राइटर्स आजादी के पहले लिख रहे थे, जिनको हम लोग ट्रिनिटी बोलते हैं, जिसमें मुल्क राज आनंद है, राजा राव है, और ये हमारे क्या नाम है इनका, आर के नारायण, है ना। इन तीनों को बार बार पढ़ते रहना चाहिए। आप ऑब्जेक्टिव तैयारी करने के चक्कर में क्या होता है, कई बार सब्जेक्टिवली डिटेल में नहीं पढ़ पाते हो, तो लेकिन हमने पढ़ रखा है, इसलिए वी कैन गिव यू लेक्चर कि उसमें क्या दिखा रखा है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा रखा है। और प्रोफेसर जब क्वेश्चन पूछेगा तो वो ऑब्जेक्टिव बुक से उठा के नहीं देगा। इसीलिए ये जो कई टीचर्स है ना, बहुत सारे टीचर्स आ रखे हैं आजकल, वो ऑब्जेक्टिव बुक पब्लिश किए और वो लोग उनको पागलों की तरह खरीद रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर्स क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, उससे नेट सिलेक्शन नहीं होने वाला। नेट सिलेक्शन हो जाएगा तो कोई बात नहीं, आगे रास्ते रुक जाएंगे। चलिए, तो सर्पेंट एंड द रोप में द राइटर हैज टॉक्ड अबाउट ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, लिखिए, नाम लिखिए। ऑन्टोलॉजी पे क्वेश्चन किया है। ऑन्टोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ बीइंग। एक फिलॉसफी होती है, फिलोसॉफिकल स्टडी ऑफ बीइंग। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जो राजा राव थे, राजा राव एक फिलोसफर थे और उन्होंने वेदांतिक फिलोसफी के लिए ही भारत में वापस आए थे। वो फ्रांस में रहते थे, वहां पे उन्होंने एक फ्रांस की औरत से शादी भी की थी। तो उनका ये ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है, काफी हद तक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है। इसमें जो क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं इस नॉवल में लिख दिए। अच्छा, ये नॉवल जो सर्पेंट एंड द रोप है, दैट वाज पब्लिश्ड इन 1960। ठीक है, इसको जो क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट इज एग्जिस्टेंस, व्हाट इज रियलिटी, व्हाट इज सेटिस्फैक्शन। इसके हीरो का नाम है रामास्वामी, ऊपर वाले का नाम क्या था, श्री राम, जो हमने अभी पढ़ा था, द वेटिंग फॉर द महात्मा जो नॉवल था। ठीक है, और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आंसर नहीं बता रहा हूं कि डी आंसर है, इट्स ओके इस क्वेश्चन का, लेकिन एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखिए इसमें कि इस पे क्या क्वेश्चन बन सकता है। अब अगर ये ऑप्शन में आ गया तो क्या क्वेश्चन बनेगा। इसमें क्वेश्चन बनेगा वेदांतिक फिलॉसफी के ऊपर, क्योंकि दिस नॉवल डील्स विद वेदांतिक फिलॉसफी। अब कई बच्चों को ये पता नहीं है कि हमारे देश में कितनी फिलॉसफीज हैं, कुल 6 हैं, है ना। उन 6 के नाम आपको आज लिख के रखने में, कल की क्लास में पूछूंगा आपसे। फिर वेदांतिक फिलॉसफी में क्या होता है, गीता आती है। अब गीता है तो आपने देखा होगा कि गीता के जो 18 अध्याय है उसमें किस तरह की बातें कर रहे हैं, कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद है, तो ड्यूअलिस्टिक, और मतलब के वेदों से परे शंकराचार्य की जो फिलॉसफी है, वेदांतिक फिलॉसफी जिसको बोलते हैं, आदि शंकराचार्य का रेफरेंस आता है इसके अंदर। और एक होता है, अभी मैंने ऑन्टोलॉजी का नाम लिया, द फिलोसॉफिकल स्टडी ऑफ बीइंग। दूसरा मैंने नाम लिया एपिस्टेमोलॉजी, EPISTEMO। आपको एक आश्चर्य की बात बताता हूं, आपको ये क्वेश्चन नेट में आ रखा है इंग्लिश के पेपर में, ऑन्टोलॉजी क्या होता है, एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है, मेटाफिजिक्स क्या होता है। 4 ऑप्शन देकर के उन्होंने एक क्वेश्चन पूछ लिया। क्योंकि जब हम नॉवेल्स पढ़ने बैठते हैं, उनका रेफरेंस पढ़ते हैं, तो ऑल दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड। अब आप केवल वोकैबुलरी इंप्रूव करते रह जाओगे, आपको यही मालूम नहीं है कि दिस पर्टिकुलर नॉवल इज बेस्ड ऑन दीज 3 इश्यूज। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब क्या होता है, लिखिए, द स्टडी ऑफ नॉलेज। अब फिलोसॉफिकल स्टडी ऑफ नॉलेज क्या होता है कि व्हाट आर द बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ नॉलेज, नॉलेज क्या है, नॉलेज कैसे ली जाती है, नॉलेज का बेस क्या है, किसको नॉलेज कहते हैं, व्हाट इज, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम विजडम। ये इस तरह के क्वेश्चन हम लोग एपिस्टेमोलॉजी में पूछते हैं। एपिस्टीम से ये वर्ड आया है। अब कल कोई बच्चा पूछ रहा था कि एपिस्टीम क्या होता है। एपिस्टीम फूको का दिया हुआ वर्ड है, ओके, लेकिन ये प्लेटो ने भी यूज किया है एपिस्टीम वर्ड, ओके। तो डॉक्सा से आया है ये वर्ड। लिखते जाइए आप लोग जो भी टर्म्स मैं यूज कर रहा हूं, डॉक्सा, आज पढ़िए बैठ करके। उसी स्टूडेंट का JRF क्लियर होगा जो एक
लेक्चर भी मेरा सीरियसली अटेंड करेगा और वो देखेगा कि सर एक एक मिनट में क्या बात बता रहे हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उसका स्टडी शुरू हो गया तो उसका जेआरएफ पक्का है। ओके, तो ऑन्टोलॉजी पे स्टडी है इस नॉवल में, एपिस्टेमोलॉजी में स्टडी है, और एक और टर्म लिख लीजिए सोटेरियोलॉजी, SOTERIO लिखो, SOTERIOLOGY। सोटेरियोलॉजी का मतलब क्या होता है? द स्टडी ऑफ सैल्वेशन। क्योंकि फ्रांस के अंदर भी आपको पता है फिलॉसफी बहुत फेमस है। कहते हैं कि अगर दो फ्रेंच कहीं मिल जाए तो दे विल स्टार्ट डिस्कसिंग फिलॉसफी, ऐसा कहा जाता है। एंड इट इज द फ्रेंच पीपल। आपको मालूम होना चाहिए कि वॉल्ट विटमन ने पैसेज टू इंडिया लिखा था, उसी के ऊपर E.M. फोस्टर ने फिर वो पैसेज टू इंग्लैंड लिखा। एक बात बताइए, पैसेज टू इंडिया जो है वो क्यों लिखा था वॉल्ट विटमन ने? क्योंकि जो स्वेज कैनाल बनी थी ना, तो अमेरिका से इंडिया की दूरी कम हो गई थी, तो वो ही सेलिब्रेटिंग इन दैट पोएम कि अरे इंडिया जैसे फिलोसॉफिकल कंट्री का, जिसमें गीता जैसी चीज लिखी गई है, अगर वहां से हमारा डिफरेंस कम होगा तो हम न जाने कितने नॉलेजेबल बन जाएंगे। ये सारी चीजें हमें पूछी गई हैं एग्जाम में। ओके, तो मैंने नया वर्ड आपको क्या क्या दिया? ऑन्टोलॉजी दिया, एपिस्टेमोलॉजी दिया, सोटेरियोलॉजी दिया। इस सब में इनकी स्टडी है। इसमें इमिग्रेशन और इमिग्रेंट की प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस किया गया है इस नॉवल में, द सर्पेंट एंड द रोप। इसके अंदर रामास्वामी है, अच्छा उसको टीबी की बीमारी है, ये भी पूछ सकते हैं आपसे। फिर उसमें उसकी जो वाइफ है वो फ्रेंच है, उसका नाम मैडलीन है। फिर उनका एक सावित्री नाम की एक लड़की होती है, वो इंग्लैंड में कहीं PhD कर रही है, वो इसके कांटेक्ट में आते हैं। बाद में वो जो सावित्री है वो बुद्धिस्ट मंक बन जाती है। ऐसे करके बहुत डीप नॉवल है। बुद्धिस्ट फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी, वेदांतिक फिलॉसफी, इन सब का जिसको नॉलेज नहीं है वो राजा राव को नहीं पढ़ सकता। ओके, और फिर उसमें एक क्वेश्चन आपको ये बन सकता है कि वो इसको क्या गिफ्ट देता है। आपको मालूम है, एक बड़ा अजीब सा गिफ्ट देता है। वो उसको देता है बिछिया, जो पैरों में टोरिंग्स होती है ना। अब टोरिंग्स देने का कोई रिवाज नहीं है, क्योंकि टोरिंग्स केवल शादीशुदा औरत पहनती है, एंड इज ऑलरेडी ए मैरिड पर्सन। ओके, तो मैडलिन, सावित्री और जो हमारा रामास्वामी है, इनके बीच में एक लव ट्रायंगल है, उसको डिस्कस करते हुए फिलॉसफी को डिस्कस किया गया है। और फिर इसका एक बच्चा पैदा होकर मर जाता है 7 महीने का, फिर एक दूसरा बच्चा भी पैदा होकर मर जाता है रामास्वामी का। ऐसे करके इस नॉवल में बहुत कुछ ऐसा डिस्कस किया गया है जिसके लिए इस पे बार बार क्वेश्चन आता है। तो आप केवल टाइटल पढ़ के रह जाते हो कि रामास्वामी कि साहब हमारे राजा राव ने क्या लिखा है, कि साहब उसने ये नॉवल लिखा है, इससे काम नहीं चलेगा। ओके, अब आपका जो तीसरा ऑप्शन है, देखिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, मैं एक बार वापस निकाल लेता हूँ। सर्पेंट द रोम मैंने डिस्कस कर लिया। अबैंडन द गेंजिस किस किसने पढ़ा हुआ है? नाम ही देखिए कितना अच्छा है। गंगा को गेंजिस बोलते हैं इंग्लिश में, पता होगा आपको। ओके, बैंड इन द गेंजिस अगेन। अब ये तीनों के तीनों नॉवेल्स में आपने नोटिस किया, इसमें वेटिंग फॉर द महात्मा के अंदर भी पार्टीशन का रेफरेंस आ रखा है। ओके, एंड अबैंड इन द गेंजिस के अंदर भी पार्टीशन का रेफरेंस आ रखा है। ये मनोहर मालगांवकर का लिखा हुआ नॉवल है। अबैंड इन द गेंजिस के अंदर उन्होंने बहुत क्विट इंडिया मूवमेंट 1930 से लेकर के 1947 तक का पूरा भारत का जो इतिहास है उसके ऊपर, क्योंकि ऑब्वियसली उस समय की जो नॉवेल्स हैं उसमें कंटेम्प्रेरी सिचुएशंस को, पॉलिटिकल, सोशल और पर्सनल जो कैरेक्टर्स क्रिएट किए उनकी सिचुएशंस को उन्होंने डिस्कस किया है। ठीक है, और ये पार्टीशन नॉवल के तौर पे पूछ सकते हैं। इसका पब्लिकेशन होता है 1964 के अंदर। ओके, तो इस तरह से हमारे पास ये 3 नॉवेल्स आ गए। इन तीनों को आप घर पे बैठ के आज डिटेल में पढ़िए, तब आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि अच्छा हमें कैसे पढ़ना चाहिए। ओके, अब आते हैं कांतापुरा पे। कांतापुरा के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा है, उसमें भी कांतापुरा का रेफरेंस डाला है उन्होंने। और उसके अंदर जो क्या कहते हैं इसको, मैंने शायद श्याम बेनेगल का सीरियल दिखा था, भारत एक खोज, उसके अंदर कांतापुरा की तरह ही बिल्कुल एज इट इज भारत की हिस्ट्री को दिखाया गया है। साउथ इंडिया के अंदर द इफेक्ट ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। अब इसके अंदर एक हरि कथा का रेफरेंस आता है। अब आपको सिर्फ इतना पूछा है कि हरि कथा और ये ऐसे आप, लेकिन आप पूरा नॉवल पढ़ोगे ना तो यू विल बी सरप्राइज। अब जो नया क्वेश्चन मुझे लगता है कि पूछ लेंगे, वो क्या करते हैं, जो इन सारे टीचर्स को अंगूठा दिखाते हैं प्रोफेसर, जो भी ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की बुक बना लेते हैं ना, क्योंकि उनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता। उसका कारण है कि एक प्रोफेसर है, उसको मालूम है कि एक आम स्टूडेंट है, उसको हरि कथा का मतलब ही नहीं पता। अब वी आर नॉर्थ इंडियंस, पर्टिकुलरली दोज हु आर वाचिंग मी राइट नाउ, हो सकता है साउथ इंडियन भी हो। साउथ इंडिया में तो हरि कथा अभी भी होती है। अब हरि कथा के अंदर एक जॉनरे है, वो इट्स अ जॉनरे। इस जॉनरे के अंदर वो क्या क्या लेते हैं आपको मालूम होना चाहिए। इसमें स्टोरी टेलिंग होती है, रिलीजियस थीम्स होती है, पोइट्री होती है, फिलोसफी होती है, सॉन्ग होता है, डांस होता है, थिएटर होता है। अब ये सारी चीजें आप इसको आप लिख लेना दोबारा वीडियो को देख करके। ये सारी चीजें मिक्स होकर के एंड देन
It is a very strange, amalgamatic, eclectic medium to change your perception. It is used to educate you. अब इसके अंदर एक छोटे से गांव में इसको एक स्थल पुराण के तौर पे, अच्छा एक और टर्म आता है इसमें, स्थल पुराण, क्योंकि इसका प्रेफिस आपको पढ़ना चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर ये डाल दूं कांतापुरा का प्रेफिस, क्योंकि उस प्रेफिस में स्थल पुराण का रेफरेंस आता है। और पुराने पेपर्स को उठा के देखिए, स्थल पुराण पे भी क्वेश्चन आ रखा है। स्थल पुराण भी पुराण का एक स्टाइल होता है। और जब हम स्थल पुराण की बात करते हैं, दैट इन एट अ पर्टिकुलर प्लेस, इट हैज इट्स ओन आइडेंटिटीज, इट हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसके ऊपर एक डीएटी होती है और उसका एक माइथोलॉजिकल इतिहास है, ऐसे करके उसके अंदर डिटेल दी जाती है। तो अब इसमें क्या होता है, मूर्ति जो है एक कैरेक्टर है, और वो जयराम चार एक करके कैरेक्टर है। जयराम चार को पैसे देता है कि तू अपनी हरि कथा के अंदर गांधीइज्म को दिखा, गांधी को हीरो बना करके दिखा, ओके। और वैसे जो पूरे नॉवल में हरि कथा करता है वो शास्त्री है। तो ऐसे करके एक टिपिकल क्वेश्चन बन रहा है। तो अब कितना टाइम हो गया देखिए, मुझे लगता है मेरे को पूरे 15 मिनट हो गए एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए। तो कॉन्शियसनेस रेजिंग कैसे होता है? ऐसे नहीं होता है कॉन्शियस। मेरा एक लेक्चर सुन लोगे तो कॉन्शियसनेस रेज हो जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं। आपको मेरे 4-5 लेक्चर अटेंड करने पड़ेंगे, तब धीरे धीरे पता चलेगा ओ माय गुडनेस हम कहाँ स्टैंड करते हैं और ये नेट का पेपर कहाँ है। तो धीरे धीरे फिर आपको पता चलेगा, क्योंकि जब मेरी ऑनलाइन क्लासेस अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो आपको पता चलेगा कि अब मैं 1-2 दिनों के अंदर अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल ऑल दीज थिंग्स। अगर मान लीजिए अंदाजा लगाओ कि हमारा एक पेपर डिस्कस होगा, तो एक पेपर अगर मान लीजिए हमने 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, तो अगर कोई स्टूडेंट मेरे पास बैठ करके 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लेता है तो उसका आधा नेट की तैयारी तो वही हो जाती है, क्योंकि वो एक एक चीज की मैं डिटेल बताता हूं, और बताते बताते स्टूडेंट को उसके जो ज्ञान चक्षु है वो खुलते चले जाते हैं। इट इज नॉट ओनली फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन बट हाउ वन शुड स्टडी, ओके। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, आइडेंटिफाई द टेक्स्ट इन द फॉलोइंग लिस्ट which offers a fictionalized survey of English literature from Elizabethan age to modern। ये पूरा क्वेश्चन दे रखा है। अब आप पढ़िए इस क्वेश्चन को, कि इस क्वेश्चन को मैं एक बार दोबारा पढ़ देता हूँ जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो। आइडेंटिफाई द टेक्स्ट इन द फॉलोइंग ऑफर्स अ फिक्शनलाइज्ड सर्वे ऑफ इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम एलिजाबेथन एज टू द मॉडर्न एज। उसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। E.M. फोस्टर का द एटर्नल मोमेंट, वर्जीनिया वुल्फ का ऑरलैंडो, रॉबर्ट ग्रेव्स का गुड बाय टू ऑल दैट, और डेविड जोन्स की इन पैरेंथेसिस। अब मैं दावे से कह सकता हूं कि आंसर तो बी दे रखा है, सब बच्चों को दिख रहा है, उसमें आंसर दे रखा है मैंने कि साहब वर्जीनिया वुल्फ का ऑरलैंडो आंसर है ना। वर्जीनिया वुल्फ एक आपको मालूम है लेस्बियन राइटर थी। आई डोंट वांट टू यूज दिस वर्ड बिकॉज शी हैड होमोसेक्सुअल फीलिंग्स एंड दो शी वाज मैरिड आल्सो। सो वर्जीनिया वुल्फ एक क्रिएटिव मॉडर्निस्ट राइटर थी जो ब्लूम्सबरी ग्रुप से बिलोंग करती थी, और हाईली सेंसिटिव, क्योंकि उन्होंने सुसाइड किया था, आपको मालूम है। मैंने 2 वीडियोस डाल रखे हैं अपने फेसबुक चैनल पे, उस पर यूट्यूब चैनल पे देखिएगा उनको। अच्छा, अब मुझे बात करनी है आपसे कि ऑरलैंडो जो है वो एक हर्मोफ्रोडाइट कैरेक्टर है, मतलब जिसमें मेल और फीमेल दोनों हैं, और वो 3 सेंचुरीज को क्रॉस कर लेता है, और उसमें सारे इंग्लिश कैरेक्टर्स और इंग्लिश एजेस और इन सब का रेफरेंस आता है। तो क्वेश्चन को इस तरह से मत देखिए, ऑरलैंडो को पढ़िए। जिन बच्चों को जिन्होंने ऑनलाइन एडमिशन ले रखा है उनको मैंने वो पीडीएफ दे रखी है जिसमें मैंने वो इंग्लिश लिटरेचर के सारे 100 से भी ज़्यादा नॉवेल्स डिस्कस कर रखे हैं। उसमें मैंने ऑरलैंडो की भी डिटेल दे रखी है। जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। अब बात करते हैं E.M. फोस्टर की। E.M. फोस्टर का द एटर्नल मोमेंट जो है, आपने एटर्नल मोमेंट के बारे में नहीं सुन रखा, अब ये 100% क्वेश्चन एटर्नल मोमेंट पे आपको आएगा। बताऊं क्यों? एक डिस्टोपियन नॉवल है जिसके अंदर, पहले तो लिख लीजिए, ये स्टोरी कलेक्शन का नाम है, ये 1928 में पब्लिश हुई थी, लिख लीजिए। और इसके अंदर एक कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है द मशीन स्टॉप्स। अब की बार जो क्वेश्चन पूछेंगे, ये क्वेश्चन क्यों पूछा है? क्योंकि द मशीन स्टॉप्स करके एक बहुत डिस्टोपियन स्टोरी उन्होंने लिखी है, जिसमें क्या दिखा है, टेक्नोपोली नाम का एक शहर है, सारे लोग जो हैं वो मशीन के आदी हो गए हैं और वो अंडरग्राउंड में कहीं शिफ्ट हो गए हैं। इसमें 2 कैरेक्टर्स का रेफरेंस आता है, जिसके अंदर एक का नाम है वष्टी और एक उसका बेटा है कुनो। वो दोनों दूर दूर रहते हैं, ठीक है। डिस्टोपियन नॉवल जानते हैं आप लोग?
शुभ्रा, मैं ऑरलैंडो को बेटा पूरा डिस्कस इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी पीडीएफ दे रखा है, तो ऑरलैंडो उसमें डिस्कस हो रखा है, तो बेटर आप उसको पढ़िए। मैंने हल्का सा वैसे बता दिया है कि ऑरलैंडो जो है एक हर्मोफ्रोडाइट का मतलब होता है मेल फीमेल का मिक्स, तो कहीं ना कहीं वो ऑटोबायोग्राफिकल है, क्योंकि वर्जीनिया वुल्फ एक लेस्बियन राइटर थी, मतलब उनके अंदर मेल फीमेल दोनों की इच्छाएं थी, क्योंकि शी वॉज अ मैरिड वुमन ऑल्सो, और उनकी एक फीमेल फ्रेंड भी थी, सेक्सुअल पार्टनर। तो मैं डिटेल में इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी इसकी पीडीएफ बच्चों को दे चुका हूं जिन्होंने ऑनलाइन एडमिशन ले रखा है, और जो आप तो ऑफलाइन स्टूडेंट हैं, आपके पास ऑलरेडी पीडीएफ है, आप उसको पढ़ लीजिए। कुछ समझ नहीं आएगा तो मैं दोबारा डिस्कस कर लूंगा, वो एक अलग चीज है। ओके, तो मैं क्या बता रहा था, एटर्नल मोमेंट में एक कलेक्शन है स्टोरी का, जिसमें कहानी बहुत फेमस है, जिसका नाम है द मशीन स्टॉप्स। तो उसमें दो कैरेक्टर के नाम मैंने बताई दिया आपको, वष्टी और कुनो है, और इसमें ऐसे ऐसे टर्म्स आते हैं जैसे वहां के जो लोग हैं ना, दे आर ऑल डिपेंडेंट ऑन मशीन्स एंड दे एंटरटेन देमसेल्फ विद द सेकंड हैंड आइडियाज। सेकंड हैंड आइडियाज क्या होते हैं, आप देखिए, आप फेसबुक पे लोग क्या क्या डालते हैं, जैसे हम लोग एक इधर की पोस्ट उठा करके उधर फॉरवर्ड कर देते हैं, बहुत कम लोग हैं जो खुद की पोस्ट लिखते हैं, है ना। इसका मतलब है कि फर्स्ट हैंड आइडियाज नहीं है। और फिर एक उनको ये बताया जाता है कि साहब उनको टेक्नोलॉजी ने उनको कंट्रोल कर रखा है, मतलब। तो एक डिस्टोपियन नॉवल है, डिस्टोपियन नॉवल जो है वो क्या होता है, यूटोपिया का ऑपोजिट होता है, ठीक है। मैं बहुत डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा हो गया, तो मैंने थोड़ा सा ये बताया। वर्जीनिया वुल्फ का ऑरलैंडो मैंने आपको डिस्कस किया, रॉबर्ट ग्रेव्स का गुड बाय टू ऑल दैट, माय गुडनेस, ये इतनी गजब ऑटोबायोग्राफी है बच्चों। इस ऑटोबायोग्राफी के अंदर उन्होंने बहुत कुछ होमोसेक्सुअलिटी पे लिखा है, बहुत कुछ वर्ल्ड वॉर के ऊपर लिखा है, और गुड बाय टू ऑल दैट का मतलब है व्हेन ही वाज अबाउट टू लीव इंग्लैंड, यू नो, तो उस वक्त पे लिखी गई एक ऑटोबायोग्राफी है। अब ये ऑटोबायोग्राफी क्यों फेमस है, क्योंकि एक तो हम तो ऑटोबायोग्राफी नहीं पढ़ते, हम तो विंग्स ऑफ फायर भी नहीं पढ़ते जो अब्दुल कलाम की लिखी हुई है। तो ये मॉडर्निस्ट लिटरेचर में वर्ल्ड वॉर को, पब्लिक स्कूल को, पब्लिक स्कूलिंग सिस्टम को, अब जैसे मुझे याद आ रहा है कि इन्होंने लिखा है कि वी ऑल आर बोर्न होमोसेक्सुअल्स इन इंग्लैंड। अब ऐसा उन्होंने क्यों लिखा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जब हम बड़े होते हैं तो पता नहीं क्यों लड़कियों के खिलाफ ही लड़कों को ट्रेन किया जाता है। कोई भी लड़का है गाली भी निकालेगा तो वो औरत के खिलाफ है। सो समवेयर, यू नो, दे आर सबकॉन्शियसली ट्रेन्ड अगेंस्ट वुमेन। ओके, तो और ब्रेवरी को वैल्यू की जाती है, हम लोग सलाम करते हैं, वो आदमी ब्रेव है। अरे ब्रेव चाहे वो सोल्जर ही क्यों ना हो, इज अ किलर। ब्रेवरी, मैस्कुलिनिटी, इन सब चीजों को क्वेश्चन मार्क लगाया है, इसलिए ये वर्क फेमस है रॉबर्ट ग्रेव्स का। ओके, अब डेविड जोन्स का नाम ज्यादातर बच्चों ने नहीं सुन रखा। अब इन पैरेंथेसिस, अब देखिए टाइटल ही देख ली, पैरेंथेसिस। अच्छा, पैरेंथेसिस का मतलब होता है सिंगुलर पैरेंथेसिस, मतलब एक जो कोष्ठक ब्रैकेट होती है ना, उसके एक हिस्से को पैरेंथेसिस बोलते हैं, लास्ट में आता है आई, इसका प्लूरल होगा तो SES हो जाएगा। इसका मतलब है, एक ये क्वेश्चन भी आ रखा है कि व्हाट इज द, यू नो, डिफरेंस, और जो ग्रामर की स्टडी करते हैं बच्चे उनको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द प्लूरल ऑफ पैरेंथेसिस। जैसे फार्मूला, तो फार्मूलाज और फार्मूले, देयर आर 2 प्लूरल्स, यू नो। इसी तरह से जैसे लोकस है तो लोसाए, फोकस है तो फोसाए, ऐसे करके अलग अलग प्लूरल्स होते हैं। लैटिन जो वर्ड्स है, जो लैटिन से आए, उनके अलग प्लूरल बनते हैं। ओके, तो अभी बात क्या चल रही है कि पैरेंथेसिस में 7 पार्ट में जो उनकी एक डायलेक्ट है, आपको पता है कि जिसको हम लोग कॉकने बोलते हैं, कॉकने डायलेक्ट में लिखी गई एक पोएम है, और जिसको बहुत पसंद किया है, चाहे वो T.S. एलियट हो, चाहे वो ऑडन हो, चाहे W.B. येट्स हो, दे ऑल हैव, यू नो, गिवन दिस पोएम फुल मार्क्स। मेरे पास ये नॉर्टन एंथोलॉजी में है, मैं इसको पढ़ता भी रहता हूँ, और जिन बच्चों ने एडमिशन ले रखा है उनको बहुत जल्दी इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। तो डेविड जोन्स की पैरेंथेसिस जो है, उसके बारे में भी मैंने आपको एक थोड़ा बहुत लेक्चर दिया, 7 पार्ट में पब्लिश्ड हुई है। इसमें उन्होंने बहुत सारे स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस का इस्तेमाल किया है। अब ये सारी चीजें जब तक आपको मालूम नहीं होगी तब तक आप क्या करोगे, केवल आप आंसर रट लोगे कि अच्छा ये जो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बी है। बट इट्स नॉट लाइक दैट, यू हैव टू पोक नोज, यू नो, इन ऑलमोस्ट ऑल द ऑप्शंस। सो दिस वाज टुडेज क्लास। मैं 3rd क्वेश्चन को डिस्कस करने के मूड में इसलिए नहीं हूं क्योंकि एक तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और दूसरा आई थिंक मैं नेक्स्ट क्लास लेने का टाइम हो रहा है मेरा। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। कल भी क्लास 10 बजे होगी, और कुछ दिनों तक लगातार मैं फेसबुक पे क्लास लेता रहूंगा। और ऑनलाइन क्लास में एडमिशन लेने के लिए आप लोग रेडी हो जाइए, आपको बहुत अच्छा स्टैंडर्ड PDF हम दे रहे हैं, और फीस के अंदर भी हम लोग कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं बिकॉज ऑफ कोरोना। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग कांटेक्ट कीजिए ताकि आपको सिस्टमेटिक क्लासेस मिल जाएं, क्योंकि आपको मालूम है कि जो फ्री क्लासेस होती हैं वो चाहे कोई भी ले रहा हो,
वो फ्री का मतलब यही होता है कि हम भी अपना माइंड उतना मेकअप नहीं कर पाते हैं फ्री क्लासेस के लिए। और ये मैं बात नहीं बना रहा हूँ, ये बात सच है कि कब तक फ्री क्लासेस लूंगा। मान लीजिए नेटवर्क नहीं आ रहा है तो मैं यही सोच लूंगा कि चलो कोई बात नहीं, बट अगर मैं पेड क्लास लूंगा तो मुझे आई विल बी बाउंड। So why don't you bound me, bind me, so that I start teaching you in a very very systematic manner. History of English literature की classes चल रही हैं। I discussed Middle English in a lot much part of this video, और उसके बाद में हमने क्वेश्चन डिस्कस किए। कल भी हम लोग आगे के 2 क्वेश्चन जरूर डिस्कस करेंगे। That's it for today. Thank you very much.